ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई थिंक लास्ट वाले सेशन में काफ़ी को डाउट्स थे, तो उसके डाउट्स जो हैं सेशन के एंड में देंगे। पहले अभी नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो रिकॉर्डिंग्स जिन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्म करा था इस वाले की सिर्फ उन्हीं को मिल दी जाएगी। और प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स मत मांगना जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी उसके लिए। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और अ, आता हो तुम्हें, नहीं आता हो, इस वाले की स्पीड जो है वी विल कीप इट थोड़ी सी नॉर्मल, और ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। लास्ट वाले में कईयों के डाउट्स थे और इवन काफ़ियों को स्पीड ज़्यादा लग रही थी, तो इस बार धीरे करेंगे। ओके, सो हमने लास्ट ईयर ट्वेल्थ में अपनी 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हैं। कौन से दो मेथड्स थे? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट? गाइस, किसी ने थर्ड मेथड पढ़ा हो तो वो भी बोल दो, नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट एक्नॉलेज। ओके, लेट्स start with the basic one. Uh, Assuming the purchase value of any asset be, let me change the figures first. Wait. So, first of all, we should, while calculating depreciation, we must have three values. The first one is the purchase value of the asset or the cost of the asset, right? Second, the useful life of the asset, like for how long the asset will keep using in our factory or in our manufacturing unit. And the third one, would be the salvage value, like after a certain period of time, if we are going to sell our machinery in the market, uh, what we can get in exchange of that machinery after 25 or a certain year, right? So let me say the purchase value of my asset be, assuming the cost of machine is bit higher or on a bit higher side. I think let me keep it 80 lakh. Okay, let's say we are working in the FMCG sector, and the useful time period may expand from 19 years to 32 years. So let's say 32 years, and this time period should always be in years. Remember that. Next, the salvage value. After 32 years, what is the value which we'll be getting if we sell this machinery? Okay, right. Let's keep it around 1 lakh and some round figure. Wait, 1 lakh 45,000. Okay. Now we can calculate depreciation on the straight line method and diminishing balance method. Can you tell me which method is better and how and why? गाइस, कोई डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ के आया है क्या? ग्रेट। Okay, let's see which one is better. Let's calculate the depreciation using both the methods and find out which method is better, on the assumption that the total depreciation to be calculated, which one is exceeding from which method and by how much. Okay, let's say it is 32 years, right? Okay, let me just scroll it down. विजिबल है सबको या जूम इन करना है? ओके। ओके, थोड़ा सा और जूम इन कर देते हैं। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ। ओके, सो टू ड्रैग इट डाउन, जस्ट डू वन थिंग, यहाँ जाओ एंड
on this corner side and double click this and drag it down to the point where you want to stretch it up to. Okay, so this is the point. So अभी ये क्या हो रहा है, 1 आ रहा है. What I can do is change this formatting uh, with fill series. I need to fill the series. It is up to 26. Okay, I need to drag it more. Fine, just copy this and in this here we paste it again. Okay, so to calculate the what is the opening value in year 1? 80 lakh. Great. 80 lakh. To calculate the depreciation, the method for the calculation of depreciation, from using straight line method, uh, we use function called SLN. SLN stands for straight line depreciation of an asset for one period, right? uh, what is the cost of the asset? 80 lakh. What is the salvage value? 1 lakh 45,000. And what is the life? 32 years. Okay, so my depreciation comes out to be 2 lakh 45,468.75. Okay, what would be my closing value? Okay, great. Okay, and for the year 2, what is my opening value? Closing value of the first year. And the depreciation for all the years will remain constant, right? Double click on at the end of the cell. See, but you it comes out with a wrong value. Can anyone tell ये क्यों आ रहा है? गाइस, एक बात बताओ मेरे को, डेप्रिसिएशन हम एस एल एन से फॉलो कर रहे हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस से कर रहे हैं? हम सेकंड ईयर की क्यों लेंगे? सी, दिस इज बिकॉज हमने फिक्स नहीं करा. सी, यहाँ पे जो है हमने परचेज टाइम पीरियड और सैलवेज वैल्यू ये लिया हुआ है. ओके, बट यहाँ पे अगर हम नीचे वाले सेल में चेक करें तो हमारा जो है एक सेल नीचे आ गया. ऑलवेज रिमेंबर डैट जब भी तुम किसी भी फॉर्मूले को स्ट्रेच कर रहे हो या नीचे ड्रैग डाउन कर रहे हो, तो उसके साथ एक सेल नीचे चला जाता है. तुम विद एवरी सेल जो भी तुम नीचे ड्रैग डाउन करोगे तो तुम्हारी सेलेक्टेड सेल्स हैं वो भी एक सेल नीचे चले जाएंगे. तो फॉर दैट रीजन what you have to do is you have to fix this cell. And how you will fix this cell, लास्ट क्लास में बताया था. Okay, so with using paste special, what we do is we just paste the values, but here we need to fix this cell. We are cell using cell referencing in the subsequent cells. For that we need to make these cells or the selected cells stable. So we use the function f4 to stable these cells. See this डॉलर साइन यू सी ना, तो दिस मेक्स द सेल स्टेबल. कि अब तुम ड्रैग डाउन करोगे तो वो जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो एक एक सेल नीचे नहीं जाएंगे. फॉर दैट प्रेस फंक्शन F4, और अगर इन अदर लैपटॉप्स इट इज जस्ट F4. सो नाउ इफ आई ड्रैग इट डाउन और डबल क्लिक इट, सी द वैल्यूज आर कांस्टेंट. ओके, वापस उसी पे आ जाते हैं जैसा हमारा कंडीशन था. सी, अगर यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं, 500.
Okay, so this is the purchase, this is the cost of the asset, this is the time, and this is the salvage value of our asset. Okay, now what we have to do is to calculate the straight line method. We need to talk about the fixing of the cell, right? So let's say what is the function SLN, which stands for straight line depreciation. The cost is 500, salvage value is 12 rupee, and the life of the asset is 5. It comes out to be 97.60. This is for year 1. For year 2, for year 3, for year 4, year 5. Either what I can do is again do the same thing, write the formula, what is the cost, the salvage value, and the time period. This is not efficient. So what we do is we scroll down the formula, and like why do we scroll down the formula? See, अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देख पा रहे हो, ए वेट वेट, अभी यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स कौन से हैं, देख पा रहे हो? द कॉस्ट इज नॉट सिलेक्टेड, और जो ब्लैंक सेल है वो सिलेक्टेड है। तुमने एक स्टेप नीचे स्क्रॉल डाउन करा, जो ऊपर के सिलेक्टेड सेल्स थे वो भी एक स्टेप नीचे आ गए। समझ पा रहे हो? इसमें अभी कोई डाउट है? गाइस डाउट पूछोगे नहीं तो क्लियर कैसे होंगे? शुड आई एज्यूम तुम सबको आ रहा है? मैं किसी मैं किसी के डाउट इस बार कंसीडर नहीं करूंगा। अगर अभी तुम नहीं पूछ रहे हो, बाद में तुम यू विल बी टेक्सटिंग मी। अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट टेल मी अभी। हमने सेल फिक्स क्यों करा? बिकॉज अगर हम फॉर्मूला ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है एक स्टेप नीचे आ जाता है, जो हमारे सिलेक्टेड सेल से वो एक सेल नीचे आते जाता है। सी अगेन, यहाँ पे अब दो चीज कवर नहीं हो रहे हैं, हम दो सेल नीचे गए तो ऊपर के दो सेल नीचे आ गया हमारा सिलेक्टेड पोर्शन। तो डेट्स वाई हमारी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट नहीं आ रही है, सेम नहीं आ पा रही है। इधर इट इज जीरो और इट इज शोइंग रॉन्ग वैल्यूज। सो सेम गोज विद दिस कंडीशन। वेट, यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो, हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन में क्या सेलेक्ट करा हुआ है? दीज थ्री वैल्यूज, 80 लाख, 32 एंड 145। अभी हमने यहाँ पे ड्रैग डाउन करा तो हमारी जो सेलेक्टेड सेल्स थी वो एक स्टेप नीचे आ गई। नाउ 80 लाख इज नॉट कवर अंडर दी सेलेक्टेड सेल्स। सेम गोज विद दिस इन द फोर्थ ईयर। यू कैन सी ऊपर के तीन सेल्स जो है अनसेलेक्ट हो गए हैं। सो हमारी वैल्यूज आ ही नहीं रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? जो फर्स्ट वैल्यू थी हम उसमें फिक्स कर सकते हैं सेल। अभी हम सेल फिक्स करा, तो अभी हम कितना भी नीचे स्क्रॉल डाउन करें, द those three cells which we have selected initially will remain the same. Now press this and see, सारी सेल जो है कांस्टेंट हो गई हैं, because this is because fixation of cell referencing. Now closing value of the second year क्या होगी? फर्स्ट ईयर की जो क्लोजिंग थी, ग्रेट, ये आ गई हमारी वैल्यू। अभी हम एक एक करके तो करेंगे नहीं। व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से यहाँ कॉर्नर पे लाओ, जस्ट डबल क्लिक। अभी देखो यहाँ पे -245 -245 आ रही है, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई वैल्यू, सारी वैल्यू जीरो है। ओके, यहाँ पे सेम करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ओके, ये आ गया हमारा वैल्यू, यू कैन सी। अब देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के एट द एंड ऑफ 32 ईयर व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू? 1,45,000। सी, and initially what we assumed that the salvage value is 1,45,000. So these are the same. It means the formula is correct and your depreciation calculation is also correct, right? किसी को एसएलएम में डाउट? ओके,
Now let's move to the diminishing balance method. Here the opening value of the asset is 80 lakh. Depreciation would be, for calculation of depreciation from diminishing balance method, we use the function called db, depreciation of asset for the specific period of the time. Okay, so what is, yeah, okay. uh, for the rand function, tell me when will we use the cell referencing, कि हमें जब किसी सेल से कोई वैल्यूज डिराइव करनी हो। रैंड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमें कहीं कहीं से भी कोई वैल्यू डिराइव ही नहीं करनी ना रैंड फंक्शन में। ओके, सो दैट इज वो उस सी, दो अलग कॉन्सेप्ट है। एक होता है सेल रेफरेंसिंग को फिक्स करना, और एक होता है चेंजिंग वेरिएबल्स और चेंजिंग वैल्यूज को फिक्स करना, जो रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है एक्सेल में। एक्सेल, एवरी टाइम तुम कुछ भी एक्सेल में एक भी चेंज करते हो, ए बी सी कुछ भी लिखते हो, तो वो सारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। दैट ऑल आर द रैंडम वैल्यूज जो एक्सेल हमें देता है। बट वाइल इन द सेल रेफरेंसिंग, हमने जो सेल सेलेक्ट करे हैं ना, हमने जैसे ही सेल एक ड्रैग डाउन करा, तो ऊपर से जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो एक सेल नीचे आ जाएंगे। तो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट ना। तो अभी रैन बिटवीन वाला कर देते हैं एक साइड में यहाँ पे। डेप्रिसिएशन में कह रहे हो? हाँ, जस्ट कॉपी। या दैट इज द ओनली मेथड। Okay, so coming back to the diminishing balance method, to calculate the depreciation using the diminishing balance method, the function is equal to db. db is the diminishing balance. Okay, stands for diminishing balance. The cost is again 80 lakh. uh, what is the salvage value? Again 145. The life of the asset is 32 years. सी, डिमिनिशिंग बैलेंस में हमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज किस ईयर के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एवरी टाइम वो वैल्यू चेंज होगी तो हमारा डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। दिस इज नॉट फिक्स। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन था यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज नॉट सेम एज जो फिफ्थ ईयर में हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन आता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? So in this, we are calculating the first year diminishing balance methods. See, first of all, the cost is 80 lakh. The salvage value is 1 lakh 45,000. The total time or the total life of the asset is 32 years, and we are calculating the depreciation for the year one. We use this cell referencing. Just click enter. The year one depreciation is 944. Okay. Uh, and again the closing would be opening minus depreciation, right? Now for the subsequent years, again what we can do is drag it down, but see, हमारा सारा फॉर्मूला जो है एक स्टेप नीचे आ जाएगा, सारी वैल्यूज जो है एक स्टेप नीचे आती जाएंगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है, तो हम फर्स्ट सेल में ही सेल रेफरेंसिंग फिक्स कर देते हैं। सो कौन कौन सी वैल्यूज फिक्स रहेंगी? परचेज वैल्यू फिक्स रहेगी, और द कॉस्ट, इसको फिक्स कर देते हैं। सेल्वेज वैल्यू फिक्स रहेगी हमारी, डेट कैन नॉट बी चेंज, इसको भी फिक्स कर देते हैं। लाइफ, जो लाइफ यूज ऑफ द एसेट और द लाइफ ऑफ द एसेट, डेट ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। but the period or the year for which we are calculating the diminishing balance method will keep changing, so will not fix the period or the year. Okay, so isko fix nahi karna hai, just press enter. Now if you double click the corner button, see, सारा ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट हो गया, एंड द एट द एंड ऑफ ईयर 32 द डेप्रिसिएशन इज 19,252, while in straight line it is 2,45,000. Okay, got it? Let's see, अब हमारा डेप्रिसिएशन, यस, ओके ओके, आई जस्ट डू इट अगेन। कंट्रोल सी कर देते हैं सारा, हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक।
ओके, हमने यहाँ तक सबको समझ आ गया। अभी हमने इसको डबल क्लिक करा, अभी सबकी या तो वैल्यू ज़ीरो आ गई या वैल्यू अननोन है या गलत वैल्यूज है। ओके, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता डेप्रिसिएशन ज़ीरो आ जाए, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आता ही नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज सी, अगर मैं ईयर टू में जाऊँ और मैं चेक करूँ, तुम देख पा रहे हो ईयर विच इज सेलेक्टेड इज टू, ये करेक्ट है, करेक्ट है। बट यहाँ पे परचेज वैल्यू जो है सेलेक्टेड नहीं है, बल्कि नीचे का एक ब्लैंक सेल सेलेक्टेड है। मैंने क्या बताया था, हम एक स्टेप नीचे जाएंगे, जो सेलेक्टेड सेल्स हैं वो भी एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, है ना। थर्ड, अगर हम थर्ड में देखते हैं, ऊपर के दो सेल्स अनसेलेक्ट हो गए और नीचे के दो सेल्स सेलेक्ट हो गए। सो डेट्स हाउ थिंग्स आर इन सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग को फिक्स करना होता है। तो ओपन करते हैं इसको। जस्ट टेल मी कौन कौन से वेरिएबल फिक्स रहेंगे। यूजफुल लाइफ विल बी फिक्स्ड, ओके। दैट इज सेल बी3, ओके, फिक्स कर देते हैं इसको। कॉस्ट भी फिक्स रहेगी, ओके। सैलवेज भी फिक्स रहेगा, लाइफ भी फिक्स रहेगी। क्या हमारा पीरियड और द ईयर, यस, by putting the dollar sign, see, either you put the dollar sign like using this shift and key function, either, and the other method is control f function plus f4. Wait, I just write it here only, fn plus uh, f4, either, अगर तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप, सी, अगर तुम्हारे ऊपर जो कीज हैं वो फंक्शन के साथ काम करते हैं, यूज एफ एन प्लस एफ ओ, इधर एफ ओ। गॉट इट। नाउ विल डू दिस अगेन, सेल रेफरेंसिंग। ये मैं एक और बता देता हूँ, दो जो हमारे मेनली यूज़ होते हैं एफिशिएंसी, अगर एक्सेल तुम रोज़ यूज़ करते हो तो टू ओपन ए सेल, इधर यू क्लिक ऐसे डबल क्लिक करके, तो वो एफिशिएंट नहीं है। जस्ट व्हाट यू कैन डू इज एफ एन प्लस एफ टू, दिस इज फॉर ओपन सेल एंड दिस इज फॉर सेल रेफरेंसिंग फिक्स करने के लिए। ओके, गॉट इट। अभी अभी हमें डेप्रिसिएशन पे फिक्स करना है, तो हमने सेल ओपन करा यूजिंग फंक्शन प्लस एफ टू। नाउ तुमने ही बताया कॉस्ट हमारा फिक्स रहेगा, सैलवेज फिक्स रहेगा, लाइफ फिक्स रहेगी। क्या पीरियड फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन वो फिक्स रह सकता है? नो। ओके, हमने उसको नहीं छेड़ा, देख रहे हो, हमने तीन वेरिएबल जो है फिक्स करे, बट फोर्थ वाले को छोड़ दिया, डेट इज दिस ईयर। प्रेस एंटर। नाउ इफ यू ड्रैग इट डाउन, सी, पर ईयर डेप्रिसिएशन नहीं। एक बार बताओ, जब हम डेप्रिसिएशन बनाते थे, डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट बनाते थे, ईयर वन और ईयर टू का डेप्रिसिएशन सेम आता था। वी यूज द चेंजिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग वैल्यूज, राइट। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग होता था वो हमारा सेकंड ईयर का ओपनिंग होता था, जिस, एंड दैट ओपनिंग फॉर द सेकंड ईयर इज द बेस ऑफ फॉर आवर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर। यही तो करते थे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी। मंथ से पहले, ओके, मंथ से पहले हमारे पास तीन थे, द परचेज वैल्यू और द कॉस्ट ऑफ द एसेट, द टाइम, दैट इज द ईयर फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। सो आई चूज दिस वन। तुम वो कहीं पे भी दे सकते हो, ये इवन ज़रूरी नहीं है मैं इसको यहीं का रेफरेंस दूँ, मुझे ईयर, नंबर ऑफ ईयर देना है, सी, मैं यहाँ का भी दे सकता हूँ। इट डिपेंड्स, राइट। डेप्रिसिएशन मंथ में कैसे कैलकुलेट होता है? सेमी, इधर, हाँ, 6 महीने। ओके, सो फॉर दैट यू राइट इट हेयर ओनली, चेंज कर दो यार। एसेट में मतलब, आई मीन
एक्सेल में ईयरली ही कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, सेमी एनुअली या क्वार्टरली नहीं होता है। हम्म। ओके, सो फॉर दैट माइनस द डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वैल्यू में से जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो माइनस करनी होती है। वो उसमें हम करेंगे पेरोल, मतलब अकाउंटिंग में करेंगे वो। हम अकाउंटिंग पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ, वी हैव ओनली 2 सेशन, सो उसमें नहीं जाते हैं, जस्ट विद द बेसिक्स। ओके, सो एंड द ओपनिंग वैल्यू वुड बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर। जस्ट ड्रैग इट डाउन। अभी यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज ब्लैंक आ रही हैं बिकॉज क्लोजिंग वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं हुई है। अगेन हमारी क्लोजिंग वैल्यू होगी, अगर हम डबल क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ओके, एट द एंड ऑफ ईयर 32 व्हाट इज द क्लोजिंग? 143,907, जबकि हमारा सैलवेज वैल्यू 145 थी। सी यही है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में तुम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते, बट एसएलएम में तुम्हारी वैल्यूज जो है सेम आती है एज दैट ऑफ सैलवेज। सी द फिगर्स, गेट इट? आगे चलें? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। यस, एब्सोल्युटली। सी हमने इसमें 80 लाख को, देखो यार, अभी तुम ना वो उस पे जा रहे हो। एक बार बताओ, हमने कॉस्ट ऑफ द एसेट 80 लाख लिया है, हम लगा 70 56 पे ही रहे हैं। टेल मी, अगर मैं 80 लाख फिक्स रख लेता, मैं वी आर यूजिंग फॉर्मूला ना, एक्सेल इज डूइंग फॉर अस ऑटोमेटिकली। हमने फॉर्मूला लगाया, वी वांट टू कैलकुलेट यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड सी इफ द वैल्यू इज फिक्स, यू आर सेइंग दैट हम तो 80 लाख पे लगा रहे हैं, 80 लाख पे हमने लगा भी दिया तो नेक्स्ट ईयर हमारा 944 सेम आना चाहिए था ना, बट इट इज 832,608। इट मीन्स इट इज कैलकुलेटेड ऑन 7056। दिस इज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बाय एक्सेल। सो यूजिंग द फॉर्मूला, वो एक्सेल का काम है कैलकुलेट करना, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज राइट। ओके, चलें आगे। नाउ कमिंग टू द फोरकास्ट पार्ट। ओके, सो मैं अपना होमवर्क करके आता हूँ, और मुझे ये बताओ, इसको हटाते हैं पहले। फॉर द फोरकास्टिंग पार्ट तो हमने, जैसे यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल दीज, उसमें हम क्या करते हैं, किसी को मतलब आइडिया? राइट राइट राइट, फोरकास्टिंग इज कुछ फोरकास्ट करना कि बिजनेस सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, what would be the performance of any company or any business enterprise in the coming few years, right? As assuming that there are few constraints, so either the revenue drivers or the expense driver sheet. So okay, let's not get into that. Basically, to assume the future value of any asset, or you can say if you want to check what would be the financial performance, assume financial performance of any company in next coming years, we will do forecasting. But see, excel में we'll do the forecasting using the historical data only. हम कोई assumption नहीं लगाते हैं, हम कोई WACC नहीं लगाते हैं, हम कोई अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं एज्यूम करते हैं। बट अगर हम फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें कुछ अजम्पशंस होती है जो हमें करनी होती हैं, जबकि एक्सेल ऑटोमेटिकली तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एजम्पशन नहीं क्रिएट कर सकता ना, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द फोरकास्टिंग, the time. So let's say it is first, we are calculating on 31st March 1980 से start करते हैं, on the basis of last 43 years. Okay, and next is 31 March 1981,
फॉर द ईयर हम ऑन द बेसिस ऑफ 43 ईयर्स हम नेक्स्ट 7 ईयर्स का हम अप टू 50 तक हम चेक करेंगे कि क्या स्टेटस होगा. ओके, फाइन. Let's say we had the revenue here, assuming in the year 1980 we had a revenue of 8 lakh. No, let's take some random values because इतनी सारा generate करना तो I don't think feasible है. We use the rand between function again. uh, okay, हमने अभी तक काफ़ी functions नहीं करे हैं ना. ओके, सो मैं अभी लिख देता हूँ विल डू द फंक्शंस एंड में, सब ये सारा करने के बाद. ओके, जस्ट लेट मी ड्रैग इट डाउन. कौन सा ईयर चल रहा है यार, ये 23 चल रहा है. ओके, सो आई एम जस्ट पेस्टिंग डाउन. अभी ये कैसे आया है अभी मत पूछना, वो हम बाद में करते हैं कि ये रैंड बिटवीन से सार एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ सकती है, वो करते हैं हम लोग बाद में. दिस इज द रेवेन्यू फॉर टिल 2023. we need to forecast ki up to 2050 what would be our revenue. Okay, so basically data analytics कितनों ने करा हुआ, या सब्जेक्ट था तुम्हारा इस सेमेस्टर में? Okay, so basically business situation can be of three types: optimistic, pessimistic and normal. यही तीनों यही तीनों सकती हैं, इसके अलावा कुछ होती है क्या बिजनेस सिचुएशन? गाइस स्पीक अप. या नहीं होती. So we use there is a tool for calculation of forecasting. This is we called confidence level. This is in the data analytics part. So confidence level is either तीन टाइप के कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं: 90% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल and the 98% confidence level. We cannot be 100% sure in any of the business circumstances कि हाँ ये होगा ही होगा, राइट. तुम कोई भी फोरकास्टिंग 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कर सकते ना. up to you can do it up to 98 97% with you cannot be sure कि yes this will going to be happen, right. So let's do this. In the optimistic it would be around 95%, and optimistic it is 90, and in normal situation, wait, I think this was wrong. This can be the only situation, right? पेसिमिस्टिक नेगेटिव होना चाहिए अगर इन तीनों कॉन्फिडेंस लेवल में से मैं देखूं. मुझे ये बताओ कौन सा लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट कॉन्फिडेंट. आई एम द लीस्ट कॉन्फिडेंट कि ऐसा होगा, विच मीन्स कि मतलब आई एम श्योर कि मेरी वैल्यूज नेगेटिव में जाएंगी बिकॉज आई एम लीस्ट श्योर, राइट, कि ऐसा होने वाला है. तो दैट इज आई एम लीस्ट कॉन्फिडेंट. तो these are the three factors which should be kept in mind before calculating the confidence level. To calculate the इसको हटा देते हैं पहले. To forecast the what would be our revenue in the next coming years till 2050, just select the data. Okay, go to data tab and here it is forecast sheet. Okay, I think काफियों ने bottom analysis करा हुआ है, right.
Okay. See, this is the graph which we can assume in the three situation. अगर तुम ध्यान से देखो, the middle line is the normal situation based on the historical values. The blue lines are the revenues of the historical data. This is the historical data, and this orange one are the forecasted data, जो कि see this middle one which is in bold. This is the are in the situation when business is running in normal environment. In the pessimistic, it is going down, and the fluctuations are high. While in the pessimist optimistic environment, the there is a boom, and it is in the upward trend. We can also see in the form of graph. Wait, just zoom हो रहा है क्या? नहीं होगा तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। हर ग्राफ के जो बार हैं उसमें लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू दिख रही है। एग्जाम जो दिख पा रहा है उसमें तुम्हें लोअर एंड अपर वैल्यूज, एक, हाँ, पतली सी एक लाइन है ग्रे कलर की। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि ऑन द गिवन बार ग्राफ, कि ऑप्टिमिस्टिक होगा तो हायर वैल्यूज होगी, पेसिमिस्टिक होगा तो नॉर्मल वैल्यूज होगी, और इन केस द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉर्मल, तो जहां तक बार ग्राफ दिख रहे हैं तुम्हें वहां तक वैल्यूज होंगी। तो इसमें ऑप्शंस होता है, यहाँ देखो, द कॉन्फिडेंस लेवल। इफ आई वांट टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल, सी, चेंज, मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है। सी, मेरा जो बार ग्राफ, इवन एक्सेल इज showing the confidence level up to 99.99, 0.001, 0.01 तो ये भी श्योर नहीं है। तो हाउ कैन अ मैन कैन बी श्योर? तो लेट्स अज्यूम वी आर 94% श्योर। ओके, and just the create it, and wait, this is the forecasting, and see हमारा डेटा आ गया in the year 2024. This is the confidence level. If I change the confidence level, this is the we have chosen the confidence level 94%, that we are 94% confident कि हमारा जो previous data ये basis पे जो हमारी coming situations है वो 94% confident that this will be the short revenue. Okay, and this is the forecasted revenue. uh, this is the confidence interval revenue based on the confidence interval what we have chosen. Got it? Okay. ओके, जीरो से स्टार्ट करते हैं गाइस। इतना टाइम नहीं है, सारा चीज़ें कवर नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज़ द लास्ट सेशन आई एम टेकिंग। इसके बाद नहीं लूँगा। तो ये जितना नीचे है ना, कोशिश करो जल्दी जल्दी तुम्हें समझ आए। ओके, इसमें आते हैं, इसलिए ध्यान दो। फोकास शीट, किसी को समझना है मुझे प्लीज़ बीच में रोक देना। फर्स्ट वी अगर देखो यार, फोरकास्ट में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट टाइम सीरीज यू कैन नॉट प्लॉट अ बार चार्ट और ग्राफ, राइट, फॉर इन द फोरकास्ट सीरीज। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। वी आर वी वांट टू चेक कि नेक्स्ट, अभी डेटा थोड़ा स्मॉल लेते हैं, डेटा थोड़ा छोटा लेते हैं। द टाइम इज 31st of the March 2000, wait, I think it's like this. Okay, and it is 31 March 2008. Okay, now what we have to do is just scroll it down up to 50, 31st March 50. So it is ran between, wait, मैं डेटा पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा फोरकास्ट कैसे हो रहा है, और ये डेटा प्रिपेयर कैसे हो रहा है वो भी बता देता हूँ। वी यूज़ द रैंड बिटवीन फंक्शन, राइट। तो उससे पहले जस्ट नो नो, अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। रैंड बिटवीन, एज्यूमिंग द वैल्यूज शुड बी बिटवीन 3 लाख टू 6 लाख।
ओके, दिस इज आवर डेटा कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 हमारा अप टू 2022 दीज आर द रेवेन्यूज। ओके, ये डेटा हमने बना लिया है। अभी हमें यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि ये हमारा रॉ डेटा है। अभी ये मत पूछना कि ये डेटा कैसे बनाया, वो हम देखेंगे बाद में। ये समझ आ गया सबको कि अभी हमें फोरकास्ट करना है कि starting from 2023 up to 2050 what would be our revenues based on the confidence interval which we have taken। अभी हमने बात करी थी तीन तरीके की बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है। वन इज ऑप्टिमिस्टिक, second is normal situation, and third is pessimistic। In the optimistic we can say we can be around 95% sure that this will going to be happen. uh, okay, in the sorry, this is the normal situation, while in optimistic we can be 98 to 99.99% sure that this situation is going to happen, while in pessimistic we are around 90% sure। this is the part of data analytics, तुम पढ़ लोगे इसको, आई गेस थर्ड सेकंड सेम में आता है। गॉट इट। Now what we have to do is select the data। Okay, go to data tab and the forecast sheet, click on the forecast sheet। this is the data that is generated, and go to options tab, see the confidence interval, the forecast date ends on 31st 3 2028, but we want to end this date on around 31st, wait, okay, the forecast sheet is start is 31st of मार्च 2022 से लेकर 2028 तक के एंड का दिखा रहा है ये अभी। तो हमें इसको हमें कितना चाहिए, 2050 तक चाहिए ना। एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अराउंड 95%। हम इसको एज्यूमिंग दिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एज नॉर्मल, वी सी इफ वी इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ जाएगा, इट इज स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और ओके, इफ आई ड्रैग डाउन द कॉन्फिडेंस लेवल और डिक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल, तो उसके साथ साथ हमारा जो रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ट्रेंड भी है चेंज हो जाएगा। सो इसको 95% रखते हैं एंड जस्ट ऑप्शन टैब बंद करते हैं। यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है गाइस, क्रिएट पे जस्ट एंटर दिस एंड तुम्हारा शीट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ऑरेंज पार्ट इज द वन जो तुमने मतलब जो नेक्स्ट 30 ईयर्स है जो तुमने फोरकास्ट करा है, दैट इज द फोरकास्ट पीरियड। वाइल ब्लू में जो मार्क्ड है दैट वन इज द हिस्टोरिकल डेटा जो तुम्हारे ऊपर वाली वैल्यूज है। सो एंड थ्री लाइन, तीन लाइन क्यों है इधर, तो ये जो मिडल वाली लाइन है ना दैट इज द नॉर्मल सिचुएशन, द अपर वन इज द ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन एंड द लोअर one is the pessimistic solution। so this is the trend that can be happen optimistic में it can, it will first shoot up and then it will become constant or it will start declining, while in the normal situation there is no such boom or either a small boom then start declining, while in the pessimistic there is a deep decline and then again declining at a constant rate। so this is the part of the data analytics and how to forecast the revenue of the coming few years given that कि हमने कोई भी assumption नहीं मानी है। see इसमें calculation of this forecasting हमने कोई भी assumption नहीं मानी है external environment की, this is just based upon the past historical data। got it? इसमें किसी को डाउट? 95% डिफॉल्ट नहीं होता, यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज इट,
चेंज कर सकते हो तुम इसको 95 90, तुम्हें 30 रखना तुम 30 रख लो, बट नॉर्मली इट इज़ बिटवीन 90 to 95 ओनली, और इन द नॉर्मल कंडीशन। और पेसिमिस्टिक जाना है तो 95 85 to 90 रखते हैं। और इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड द बिजनेस इज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, यू कैन कीप इट अबव 97%। सो ये होता है बेसिकली रेंज, तो मतलब द सी इंडस्ट्री के हिसाब से मत देखो, ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये ये दिस इज फॉर द बेसिक वन, की अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज है, तुम्हारे पास कोई एजम्पशन नहीं है, देयर इज नो एक्सपेंस शीट, देयर इज नो ड्राइवर्स, सो देन वी यूज दिस, कि हमारे पास इसके हमारे पास रेवेन्यू के अलावा क्या डेटा है। वेल अगर तुम्हें फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है तो यू विल नो कि देर इज 100 more थिंग्स जो हमें चाहिए होती हैं टू प्रिपेयर द मॉडल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। तो दिस इज जस्ट द बेसिक, कि मतलब what can be forecasted from the past previous year data। I think you all got it। guys, चलें आगे। Okay, now what is risk? To calculate risk, see regression model, अगर regression model में क्या होता है ना, there is some risk, कि see तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी y is equal to a plus bx, ये क्या होता है? Slope of a line, what does it indicate? Okay, I'll tell you। कैन यू टेल मी वाई, वेट सॉरी, इधर वाई क्या है और इधर एक्स क्या है? ग्रेट, वाई इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज डिपेंडेंट। ओके, ग्रेट। ए जो है कांस्टेंट होता है, जो कि दैट इज कीप ऑन एडिंग विद द चेंज इन टाइम और चेंज इन ईयर। एंड व्हाट इज बी? इंटरसेप्ट, you can say it coefficient of x, but it is intercept। Okay, so this is the data। so रिग्रेशन मॉडल अभी जब हम क्रिएट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज होता है और हाउ इट इज रिलेटेड। सो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए डेटा एनालिसिस में, कि these are the things which need to be kept in mind: the x variable, y variable, how they are changing, the change of one variable causing the change of other variable। So to calculate the risk in any business, how things are related to each other, and the loss of one can be due to other, or how it is affecting and which extent। So all these things are calculated on the basis of standard deviation, variation, variance, coefficient of variation, stand correlation। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है, कोई बता सकता है क्या? ये तो पढ़ के आए हो सारे, स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ्स में करा था ना। गाइस बताओ भाई। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी वैल्यू डेबिटेड है उसको थोड़ा इजीली बताओ। सी अगर कोई तुमसे पूछे कुछ भी ना, तुम्हें इतना इजी टर्म्स में बताना चाहिए कि एक थर्ड क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल हो गया, और आई गेस ये थोड़ा लेते हैं इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, ऐसे हवा में नहीं करेंगे हम रिस्क कैलकुलेट। तो मुझे ये बताओ, लेट से हम निकालते हैं, हमें मीन निकालना है किसी डेटा का, हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। लेट से 45, 4, 6, 3, 7, 2। ओके, ये हमारे पास डेटा है। अब इसका मीन क्या होगा? मीन इज द एवरेज ऑफ द डेटा।
दिस कम्स आउट टू बी 16.62. क्या मुझे बताओ दिस मीन which we have calculated is the correct mean of the given data set? और क्यों नो? डेविएशन क्यों आ रहा है मुझे ये बताओ? 16.62 इस पूरे डेटा सेट में कहीं वैल्यू दिख रही है तुम्हें? इवन इसके अराउंड वैल्यू दिख रही हो, 15, 13, 17, कुछ भी हमें वैल्यू नहीं दिख रही है. दैट इज बिकॉज द आउटलायर्स. दिस 45 एंड 65 आर द आउटलायर्स इन द डेटा सेट, जिसकी वजह से हमारा जो है एवरेज जो है मैनिपुलेट हो गया. दैट्स वाई वी कॉल कि एवरेजेस आर नॉट द बेस्ट मेजर ऑफ एनी डेटा सेट. हम कहते हैं दिस इज द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज. एवरेज इज नथिंग बट जस्ट मैनिपुलेटिव इन नेचर. सो डू नॉट every time consider this. I mean, averages are of no use. So averages, but outliers. Okay, I'll tell you it. Just give me a minute. ओके, सी. अब मुझे बताओ, हमने ये मीडियन निकाला, क्या ये डेटा में गिवन है? 6 गिवन है. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग अराउंड द डेटा, जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं है ये वैल्यू. तो दिस कैन बी अ करेक्ट मेजरमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, आगे भी लाइफ में मीडियन इज द मोस्ट यूजफुल मेथड टू कैलकुलेट द आउटलायर्स, और द average is nothing but just manipulative. So don't every time don't consider the averages. So किसने पूछा है अभी अभी कि आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स अगर सरल भाषा में बताऊं, आउटलायर्स आर नथिंग जो पूरा डेटा को मैनिपुलेट कर देना. दैट इज आउटलायर्स, जो पूरा डेटा से हटके हो. मुझे बताओ इस पूरे डेटा सेट में सबसे डिफरेंट वैल्यूज कौन सी दिख रही है तुम्हें? यस, दैट्स इट, दैट दोज आर द आउटलायर्स. जो अगर अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूँ, ग्राफ प्लॉटिंग करता हूँ, दीज आर द आउटलायर्स बिकॉज पूरे डेटा सेट में these are the only two variables which are over and above the data set as a whole. तो तुम समझ सकते हो ये वैल्यू जो है मैनिपुलेट कर रही है एवरेजेस को. 45 अगर 65 नहीं होता, लेट से अगर मैं इसको ना 12 कर देता हूँ, और मैं इसको 9 कर देता हूँ. नाउ नाउ द मीन इज करेक्ट एंड इट इज़ रिलायबल एज वेल. तो हम नहीं बता सकते जो एवरेज है वो कितना रिलायबल है और कितना नहीं है. इट सेम गोज विद द कॉलेज पैकेजेस एज वेल. वी सी की द कॉलेज हैज़ अराउंड 20 लाख एल एल सी पैकेज है. तो दैट इज़ अ गुड कॉलेज, बट हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता. देयर मे बी द सिचुएशन वैन अ स्टूडेंट get 35 lakh package, while other set of students got around 4, 5, 6, 8, 9. वेट, 9. सो इस केस में मुझे बताओ, अगर मैं इसको कर देता हूँ वेट 35, और इधर मैं लेता हूँ 20, दैट इज़ द पैकेज विच आर ऑफर्ड इन अ कॉलेज कैंपस. ठीक है. अब मैं इसका अगर एवरेज निकालूँ, this comes out to be 12 lakh. But see, majority of the students didn't get the package of 12 lakh or more. बट एवरेज का मतलब क्या होता है? दैट इज द मिडल वैल्यू. तो हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि भाई आधी वैल्यू 12 लाख से नीचे और आधी वैल्यू 12 लाख से ऊपर है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इन द पिटफॉल कि हाँ भाई अच्छा कॉलेज है, ऑफरिंग 12 प्लस पैकेज एवरेज. तो दिस इज नॉट द सिचुएशन. तो द एक्सट्रीम वैल्यूज को हम आउटलायर्स कहते हैं. सो द एक्सट्रीम वैल्यूज कैन मैनिपुलेट द डेटा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये जो मैंने अभी इतना देर से बोल रहा हूँ. इसमें किसी को डाउट? गॉट इट. अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं टू कैलकुलेट. अभी हम ना इतना तुम समझ गए, ये बाकी हम रिग्रेशन में करेंगे. अभी एक रैंड वेट, रैंड बिटवीन लेते हैं, एंड बिटवीन द 30,000 टू 40,000.
अभी हम इसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने का फॉर्मूला क्या था, पे स्पेशल एंड पेस्ट वैल्यूज। ये हमारी रैंडम वैल्यूज जनरेट हो गई। अभी हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? अभी देखो इसका बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो उसका रट्टा मारना तो पॉसिबल नहीं है, बट व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर अस कि एक फंक्शन याद कर ले। द फंक्शन फॉर इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट सैंपल। दो फॉर्मूले होते हैं। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल? गाइस, पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? दोबारा रिपीट प्लीज। ओके, एंड can I say कि in a population of 1000 people, uh, there are 25 groups each, and in those 25 groups there are 5 people each, belonging to a particular section of a society. That is the sample space. मैंने क्या बोला, समझ आया किसी को? या दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? Let's say in a population of 1000 people there are 20 groups each. In aggregate there are 20 groups, okay. In those 20 groups there are there are four group, consisting of 5 people each, and those 5 people belong to some class or some society of the that population. तो वो जो सोसाइटी है, जो 5 लोगों का ग्रुप है, क्या वो सैंपल साइज है? या वो 20 लोगों का ग्रुप सैंपल साइज है, या वो 4 लोगों का ग्रुप सैंपल साइज है? आई मीन द चार, टोटल 4 सेक्शंस, कौन सा होगा सैंपल? ये सब तो पढ़ के आना। गैस, पॉपुलेशन और सैंपल साइज का डिफरेंस, बेसिक मैथ। 20 पॉपुलेशन है पक्का? एक मिनट, ठीक है, अगर तुम ये कह रहे होंगे तो ऑल्सो टेल मी एट द सेम टाइम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटा एंड सैंपल? स्ट्रेटा और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? Okay, leave it. Okay, there are two things basically. One is standard deviation for the calculation in the sample, and another one is standard deviation in population. So basically, can anyone tell me this is population or it is sample or population? This data. यार देखो, how can even no one can say that this is sample or this is population. This cannot be determined. मैंने यहाँ पे कुछ भी बताया तुम्हें, दिस इज रैंडम फिगर्स, इधर इट कैन बी पॉपुलेशन और इधर इट कैन बी सैंपल स्पेस। दिस कैन नॉट बी डिटरमाइन सोनली बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते वो भी सुनो। सी, डेटा कैन बी ह्यूज डेटा सेट। Let's say there are 3 departments, okay, in a company. The retail, the retail segment, the दो कोई और मान लो, ठीक है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, एंड तीनों का ना एक डेटा सेट गिवन है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अराउंड 25,000 फिगर्स। 25,000 वेरिएबल्स हैं हर डेटा सेट में, नंबर्स हैं। तो 25,000 25,000 25,000 कम्स आउट टू बी 75,000। तो वी कैन से डैट कि 75,000 जो है मेरा पॉपुलेशन है, एंड 25,000 मेरा सैंपल स्पेस है ना। एंड इफ आई सेग्रीगेट, और मैं और इसको अगर नीचे जब, ओके, लीव दिस नहीं, इसको नहीं करते हैं।
We do not have much time to get into it. Let's just calculate the standard deviation. The formula for calculating the standard deviation is stdev dot s or stdev dot p. Always remember to use sample one. हमेशा इसको प्रेफर करना. या हाँ, सैम्पल सैम्पल पॉपुलेशन का ही डाउट पार्ट होता है. बट सी मैन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ पॉपुलेशन कैन बी मैनिपुलेटेड. कैसे मैनिपुलेट हो सकती है? बाय चेंजिंग द फिगर्स. और वो फिगर कैसे चेंज हो सकती है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, नॉट दैट डेटा एनालिटिक्स. तो वो मैं कवर नहीं कर रहा अभी, सिर्फ हम बेसिक्स करते हैं. ऑलवेज प्रेफर दिस वन गाइस, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैम्पल. टू कैलकुलेट दिस, इक्वल टू एस टी डी वी डॉट एट एस. वेट, लेट मी चेक अगेन. अब क्लियर आ रही है? Okay, so the formula is stdv dot s. The we have to select the whole data set and press enter. The standard deviation comes out to be 5021.88. Now let's calculate the average or the mean of the data. हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के हम कोई बता नहीं सकते कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हाई है कितना लो है. पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे अपना एवरेज. डॉट पी आई विल नॉट टेल इट बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सबके लिए समझना. अभी बस इतना समझो कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल यूज़ करना होता है हमें. when you will start working ना, when you get into your jobs, you'll got to know कि business analytics और data analytics कैसा different है, and why I used to told that कि always use sample not population. It can be manipulative, just remind this thing. And to calculate the mean, what is the formula, what is the function? Average. Again select the whole data set. Now I can conclude that the standard deviation is, the mean is 35,208, right, while standard deviation is 5021. What we can conclude is कि most of the standard deviation is low. Do agree कर रहे हो सब? As compared to average. Guys speak up. 35,000 in comparison में 5,000 is very low. I am calling it low because as compared to mean or the average of the data set is 35,000 around, while standard deviation is 5,000. That is really low as compared to 35,000. हाँ है ना? कंपैरिजन करो गाइस, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपैरिजन. कंपैरिजन है ना? तुमने ही किसी ने भी मुझे बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन मींस कि डेटा कितना डिस्पर्जन कितना है, डेटा का कितना डेटा सेग्रीगेटेड है. तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस डेटा इज लेस डिस्पर्स. हाई का मतलब होता है हाईली डिस्पर्स्ड. ओके. और अगर कोई डेटा लेस डिस्पर्स्ड है, वी कैन से दैट इट इज रिलायबल डेटा. एंड व्हेन द डेटा इज हाईली डिस्पर्स्ड और जो वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं. अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दूँ ना, मान लें मैं 2 लाख कर दूँ यहाँ पे वैल्यू, तो मेरा डेटा का एक वैल्यू बहुत दूर चली जाएगी 30,000 और 40,000 के सेट से, है ना? और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो जाएगा उस केस में. और हाईली डिस्पर्स डेटा का मतलब होता है डेटा इज नॉट रिलायबल. इतनी सरल बात सबको समझ आई? बस इतना समझ लो. ग्रेट. देख लो, समझ रहे हो ना? मैं वर्कशीट दूंगा इसकी. नाउ कम्स द वेरिएंस. वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है VAR डॉट पी. VAR डॉट S, अगेन इट इज सैम्पल.
variance of the it is calculated. Select the data set. This comes out to be this one variance क्या होता है ये अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, तो just do this and just give me a break, just give me a second. या सो बेसिकली किसी को पता है क्या वेरिएंस क्या होता है एंड व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस? ग्रेट ग्रेट। और हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? कोई बात नहीं, नहीं पता तो आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा ही होगा यार, स्टैटिस्टिक्स थी ना 12th में। मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रेट। कौन था ये? हर्षिता, ओके। मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, this comes out to be 7.01. Okay, and the correlation? कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कॉरल सी। पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था x इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना, ये पढ़ा था हमने। हम ये पढ़ा था अभी। तो मुझे ये बताओ हाउ एक्स की वैल्यू वाई के साथ कितनी कोरिलेट करती है, या वाई की वैल्यू एक्स के साथ कितनी कोरिलेट करती है, वो हम कैसे पता चलेगा कि गिवन एरे में लेट्स से दिस इज वाई दिस इज एक्स, हाउ दीज बोथ वैल्यूज आर कोरिलेटेड? पता है हमें? नहीं पता ना। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कॉरल is equal to Corel array 1. So to calculate the correlation is always calculated for two variables, two data set, or let's say change in cost, and how much change there should be in the cost to change the revenue. So there are two arrays or two data set कि x के चेंज होने से y पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सो कोरिलेशन ऐसे कैलकुलेट होता है। सो इसको हम लेट्स सपोज दिस एरे वन और डेटा सेट वन एंड दिस इज डेटा सेट टू। इतना सबको समझ आया? कोरिलेशन हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला इट इज मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डिवाइड बाय, यस यस, नहीं नहीं कोई फंक्शन नहीं है। Array 1 should be always the dependent variable. Array 1 is dependent variable, that is the y variable, while array 2 is the independent variable, that is the variable x. So that's how you calculate the four things which are generally used in the regression model for to calculate the risk. Got it? ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी ज़्यादा दूर या पास हैं एवरेज के, यानी कि मीन के। अगर हम, या आई कैन नॉट ड्रॉ हियर, राइट? सो बेसिकली द थिंग इज़ वी हैव टू चेक कि एक सर्टेन डेटा सेट है। अभी मैंने डेटा सेट बनाए दिखाया था जिसमें 65 45 6 7 8 था। तो कितनी वैल्यूज जो थी डेटा सेट के पास थी और कितनी वैल्यूज डेटा सेट से दूर थी। सो देर आर टू वैल्यूज इन द डेटा सेट जो होल डेटा सेट में डिफरेंट थी, यानी कि आउटलायर्स थे। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर लो और हाई। तो
In case the standard deviation is close to the mean, it means that the data is highly dispersed or the standard deviation is high. Considering this, the data is not reliable, because uh, if there is one single huge value, the whole data set can be impacted, and then the data set cannot be reliable. We cannot rely on this such data जिसमें हमारी कोई एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर रही है. दैट सीम्स टू बी आउटलायर फॉर अस. समझ आया? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ एनालिसिस में तीन पार्ट होते हैं. कैन यू रेज योर हैंड, कितनों ने कर चुके हैं ये पार्ट? सिर्फ एक को आता है? ओके, कर चुके हैं अपना मतलब. अच्छा, एग्जाम देने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, क्या बात है. कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं. बेसिक से चलते हैं बिल्कुल ना, है ना. आई गेस नहीं हो पाएगा, और हम आई गेस इसमें रिग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे. तो रिग्रेशन तो हटाते हैं. दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस चाहिए होती हैं. अभी हम व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है. और ये इतने में हो जाएगा, आधे घंटे में. व्हाट इफ एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक. व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या है? व्हाट इफ, इन केस, ओके, कि एक की वजह से कौन सी वैल्यूज इंपैक्ट हो रही हैं. दिस इज नॉट रिग्रेशन गाइज. रिग्रेशन मॉडल इज डिफरेंट, कि हमारे पास सारी वैल्यूज अननोन है. बट व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास कुछ वैल्यूज नोन होती हैं, कुछ वैल्यूज अननोन होती हैं. तो ये मेजर डिफरेंस है यूज़ करने के लिए. वाइल रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास एक रॉ डेटा सेट होता है जिसमें हमें खुद ही सारी चीज़ें करनी होती हैं. व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास बहुत कुछ होता है. तो यहाँ पे हम एक बिजनेस सिचुएशन केस बनाते हैं, बहुत छोटा सा बनाएंगे जिसमें सबको इजीली समझ आ जाए. सो एज्यूमिंग we are in a FMCG industry and we are selling some goods. uh, क्या प्राइस रखें उसका? कोई प्लीज़ मुझे असिस्ट कर दो. गाइस बोलो, कोई प्राइस बोलो रैंडम. सॉरी. थोड़ी बड़ी वैल्यू रखो भैया, थोड़ी और बड़ी. 10 लाख? इतना अच्छा वैल्यू, वाह. थोड़ा रैंडम नंबर बताओ जिससे हमें थोड़ा, हम खुद से कैलकुलेट ना कर पाए. वन, एज्यूमिंग इट टू बी 10. हम उल्टा चलते हैं. हमारी ये वैल्यू है, ये हमारा प्राइस है, ठीक है. कंप्लीटली अननोन प्राइस. We have a quantity of around 5432. This is the quantity we are selling. प्राइस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इतना तो नहीं होना चाहिए. चलो ठीक है, इतना ठीक है, इतना तो ठीक है. चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, मुझे नहीं पता. रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी. एंटर कर दिया, हमारे पास ये प्राइस आ गया, 2 crore 45 lakh, ठीक है. एज्यूमिंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू बी अराउंड एंड अराउंड 8%. 8% मान लें. अगर 8% हम इसको मानते हैं, इज इक्वल टू 0.08 इंटू द टोटल रेवेन्यू. एंटर. इट कम्स आउट बी 1962. आइटम कॉस्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट क्या आई, कितनी कॉस्ट आई होगी, कितना परसेंट होता है. मान लेते हैं 2% हमारी वैल्यू आई. नहीं, 3% मान लेते हैं. एज्यूमिंग 3%.
ओके, द आइटम कॉस्ट इज 0.03 ऑफ वेट, फॉर्मूला नहीं लगाया ना, इज इक्वल टू भी तो लगेगा भाई, ऑफ टोटल रेवेन्यू, दिस इज द आइटम कॉस्ट। ये बहुत बहुत छोटा एग्जांपल हो गया ना, कुछ और ऐड करें इसमें, इंटरेस्टिंग करना है इसको या सिंपल रखना है? अच्छा चलो सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को। टोटल कॉस्ट क्या होगी? सम ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड आइटम कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। एंड प्रॉफिट क्या होता है हमारा? टोटल रेवेन्यू माइनस हमारी टोटल कॉस्ट, दिस इज आवर प्रॉफिट। इतना तो सबको समझ ही आ गया होगा, ये तो हमने बहुत बेसिक ऑपरेशन करा है ना। अब हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं अपने नंबर्स के साथ, इसको अच्छे से बहुत प्यारा सा नंबर बना देते हैं ताकि सबको इजी लगे समझ में। अब सबको लग रहा है इजी? ये इसमें भी कोई डिफिकल्टी है? ठीक है ना? ठीक ही है बस, सब कुछ ठीक चल रहा है। कॉलेज कैसा चल रहा है तुम लोगों का? अरे हैपनिंग बनाओ यार कॉलेज को, एग्जाम तो है, हो जाएंगे। तो अभी हम व्हाट एनालिसिस करते हैं, वापस आते हैं, टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो सी, व्हाट एनालिसिस टू एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। सिनेरियो मैनेजर, द सेकंड वन इज डेटा टेबल, एंड थर्ड वन क्या होता है? क्या होता है? गोल सीक। ग्रेट। तो सबसे पहले हम करते हैं सिनेरियो मैनेजर। तो ये तीन चीज़ क्या होती है सिनेरियो मैनेजर में? क्या होता है ना कि अब देखो यार, मैं अगर बार बार क्वांटिटी चेंज करके देखूंगा, एज्यूमिंग कि मुझे कुछ सर्टेन प्रॉफिट चाहिए, अब मैं चेक कर रहा हूँ बार बार रैंडम फिगर्स डाल डाल के कि कि लेट्स से वी आर प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, तो हमारा प्रॉफिट क्या क्या होगा? अब मैं बार बार चेक करूँगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना मेरे लिए। इतना तो हम मेहनती हैं नहीं ना, हम तो बहुत आलसी लोग हैं, तो इतना हम काम करना पसंद करते नहीं हैं, तो चीज़ों को ईजी बनाते हैं। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है कि डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके देता है तुम्हारे लिए, ठीक है? अब गो टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, द सिनेरियो मैनेजर। वेट वेट, मैं इसको पहले delete अभी यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है कि वी वांट टू क्रिएट लेट्स से फोर सिनेरियोज, हम फोर सिनेरियो बनाएंगे, है ना? Go to add tab, now scenario name, what we, let's suppose we want to change, we want to increase the quantity, नेम द फर्स्ट सिनेरियो, कोई भी नेम रख दो यार, लेट से हम इंक्रीज करते हैं 700 क्वांटिटी। व्हाट इज द चेंजिंग सेल? अगर हम क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, कौन सा सेल चेंज होगा हमारा? दिस वन, B3। हम D3 क्यों चेंज करेंगे? वैल्यू तो हमारी B3 में है, हम चेंज क्वांटिटी कर रहे हैं, सेलेक्ट हम ब्लैंक सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना कमेंट डाल सकते हैं। अगर देखो कमेंट करना पसंद है तो करो, नहीं करना है तो ओके कर दो, नहीं करना मुझे कमेंट। वी वांट टू एंटर वैल्यू, क्या अभी हमने क्या चेक करना है हमें, 700 पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, एट दिस। वी वांट टू क्रिएट एटलीस्ट फोर सिनेरियो अभी, ताकि समझ आ जाए। नेक्स्ट सिनेरियो इज वी वांट टू चेंज द प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ 800, गॉट इट? कमेंट हमें कुछ नहीं करना, चेंजिंग वैल्यू अगेन हमारा B3 रहेगा, वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी। ओके, अभी हमें कितना चाहिए? 800, अगेन ऐड। नेक्स्ट सिनेरियो वुड बी 1000 क्वांटिटी, एंड कमेंट वुड बी, हमें नहीं करना कमेंट भाई, नहीं करना। ओके, दिस इज 1000। लास्ट लास्ट सिनेरियो कैन बी 1200, सॉरी। देखो यार, मैं बताता हूँ, अगर तुम एक सिनेरियो में मल्टीपल केस डालोगे तो वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक ही सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, ये
दिस कैन बी, या देखो तुम्हारी बात ठीक है, तुम चाह रहे हो कि तुम प्राइस चेंज करना है, तो उसके लिए तुम्हें अलग सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा. दिस सिनेरियो इज ओनली रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेल, और यू कैन से पर्टिकुलर थिंग. अभी तुम्हें प्राइस के लिए करना है, यू कैन प्रिपेयर अनदर सिनेरियो शीट, है ना. तो क्वांटिटी के लिए वन सिनेरियो शीट, अगर प्राइस के लिए चाहिए तो अनदर सिनेरियो शीट. सी, अगर तुम्हारा बिजनेस डिसीजन है, तुम कह रहे हो भैया हमें क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, इधर व्हाट यू कैन डू, इधर क्वांटिटी इंक्रीज करोगे ना, इधर ना कि अपने डिसीजन के बीच में कह रहे हो नहीं हमें तो प्राइस बढ़ाना है, ऐसे नहीं होता ना. स्टिक टू द फैक्ट. Now we want to increase to 1200 quantities, 1200 quantity. Okay, these are the four situation that we have created, है ना. अभी हमें क्या देखना है, 700 पे क्या होगा. अब तुम शीट मतलब उस बॉक्स में चेक करना क्या चेंजेस आते हैं. अगर मैं यहाँ 700 करता हूँ, वैल्यूज चेंज हो गया. इफ आई वांट टू चेक इट फॉर 800, अगेन चेंज हो गया. For 10,000 it is changing, for 1200 it is changing. But I want to check at the same time कि अगर मैं मुझे एक साथ चेक करना है, तो एक साथ तो आ ही नहीं सकता ना वो. अभी हमें एक साथ चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी वांट अ समरी. दिस, क्लिक ऑन द समरी टैब. व्हाट आर द रिजल्ट, कि तुम्हें इसका चेंज इन क्वांटिटी का इम्पैक्ट किस पे दिखाना है, तुम्हें क्या चेंज करना है, अपना प्रॉफिट चेंज करना है, राइट. तुम बताओ क्या चेंज करना है तुम्हें, उसी हिसाब से हम करेंगे. हम्म. प्रॉफिट. बट सिनेरियो मैनेजर, जब हम एक सिनेरियो समरी देखेंगे ना, तो हमें क्वांटिटी चेंज में हमें सिर्फ प्रॉफिट नजर आएगा कि अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो ये प्रॉफिट आ रहा है. जब हमारे पास समरी आती है, तो व्हाट इज द चेंज एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट वो आएगा. लेट्स से यू आर क्रिएटिंग 4-5 सिनेरियो, या तो इनपुट और आउटपुट ही आता है. व्हाट यू वांट एज आउटपुट, ये बात तुम्हारी ठीक है, रिजल्ट चेंज सारी वैल्यूज होंगी, बट आउटपुट तो एक रहेगा ना. एक केस में व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट. यू कैन नॉट शो द होल प्रोसेस की प्रॉफिट पे आने के लिए हमारी आइटम कॉस्ट ये थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये थी, हमारा रेवेन्यू इतना चेंज हो गया था. ऐसे तो नहीं हो सकता. द फाइनल आउटपुट इज प्रॉफिट हमारा कितना चेंज हो रहा है, एंड द रिजल्ट सेल इज B8. प्रेस एंटर एंड देन ओके. दिस इज द सिनेरियो समरी दैट वी हैव क्रिएटेड, कि 1000 वैल्यूज पे क्या होगा, 700 पे क्या होगा, 800 पे क्या होगा, एंड इस पे कितना कितना होगा. ये हमारा चेंज इन वैल्यूज. देखो यहाँ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं. अभी देखो तुम्हें यहाँ चेंजिंग सेल B3 दिख रहा है, B8 दिख रहा है. अभी तुम चाह रहे हो यहाँ पे तुम्हें ये ना दिखे, तुम्हें यहाँ दिखे क्वांटिटी एंड प्रॉफिट. तो डू वन थिंग, व्हाट इफ एनालिसिस पे वापस जाओ, सिनेरियो मैनेजर पे वापस जाओ. इस पे जाने से पहले ना, इस सेल पे इधर जाके ना B8 पे जाके लिख दो प्रॉफिट, दैट दिस इज योर प्रॉफिट. ओके. एंड क्वांटिटी पे जाके लिख दो दिस इज योर क्वांटिटी. फाइन. Okay, now go to what if analysis, scenario manager, and again hit summary button. Result cell is B8. Now देख पा रहे हो, 600 700 800 1000 1200 यूनिट क्रिएट करने पे हमारे पास क्या सेल रिजल्ट आ रहा है. दिस इज द चेंजिंग सेल. अगेन जिसने पूछा था, द इनपुट दैट इज द चेंजिंग सेल, द आउटपुट दैट इज द रिजल्ट सेल, दैट इज द प्रॉफिट. सो ये हमारे चेंजेस होंगे. गॉट इट. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है गोल सीक. हमें ना भाई प्रॉफिट हमें चाहिए अनएक्सपेक्टेडली, हमें कुछ नहीं जानना, हमें हमारे पास हमारा माथा फिरा हुआ है और हमें कुछ नहीं जानना, हमें प्रॉफिट चाहिए, बस हमें प्रॉफिट से मतलब है. ठीक है. हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें क्या चेंज करना है. लेट्स से सरफिरा आदमी, एक सरफिरा बॉस है तुम्हारा, ही वांट कि इंक्रीज द प्रॉफिट बाय अराउंड, इंक्रीज द प्रॉफिट टू 50 लाख, कि दिस प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज टू 50 लाख. द सेट सेल इज B8 टू द वैल्यू ऑफ 50 लाख. समझ आ रहा है सबको. गोल सी, कि हमें एक गोल चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए ही चाहिए. तो उस वैल्यू को लाने के लिए क्या क्वांटिटी होगी,
और क्या रेवेन्यू होगा या कुछ भी होगा। तो लेट्स से जो बॉस सेज कि भाई हमें 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी बेचो कुछ करो मुझे वो चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेट एनी वेरिएबल दैट इज चेंजिंग। ईदर यू कैन से कि क्वांटिटी चेंज हो जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाए, रेवेन्यू हमारा बढ़ जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाए तब हमारा प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ा दे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देयर कैन बी न्यूमरस वेज, राइट? बट अभी हमें एक पे फोकस रहना है, स्टिक टू वन सेल। और एक चीज बताओ जो तुम्हें चेंज करनी है। क्वांटिटी, ओके। यू कैन, वैसे भी तुम क्वांटिटी को ही मैनेज कर सकते हो, है ना? ओके, देयर सी देयर आर अराउंड, okay, see this is the quantity that you need to sold out to get a profit of 5 lakh. This is for the 5 lakh। एंड अगर मैं इसको चेंज, वेट मैंने 50 लाख नहीं करा था क्या? दोबारा करते हैं यार। एंड बाय चेंजिंग सेल ऑफ this is the quantity that I need to sold out 1337 points this एंड इसको अगर मैं कोई क्वांटिटी हम पॉइंट में तो बेच नहीं सकते हैं। 1338, this is the quantity that I need to sold out to get a profit of around 50 lakhs। समझ आया इतना सबको? ओके, मीटिंग में कितने हैं? 32 पॉइंट्स। नंबर सी यहाँ पे ना, होम टैब पे तुम्हें नंबर पार्ट में यहाँ पे डेसिमल दिख जाएगा कि तुम्हें कितने डेसिमल आगे लेके जाना है, कितने डेसिमल पीछे लेके जाना है। तो ये वही है, राउंड ऑफ। ओके, नाउ इट कम्स आउट टू बी द थर्ड पार्ट ऑफ द डेटा टेबल। अब डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? अभी हमने सी, डेटा टेबल वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता, बहुत आउटडेटेड है। करना है क्या? ठीक है, छोड़ देते हैं, वैसे भी बहुत आउटडेटेड है। तो हमारा व्हाट इफ एनालिसिस हो गया इसके साथ। नाउ इट कम्स टू बी द इंडेक्स मैच फंक्शन। इंडेक्स मैच क्या होता है, किसी को पता है क्या? इंडेक्स मैच का मतलब भी बता दो, कोशिश करा करो बोलने की। इंडेक्स मैच का मतलब नहीं पता किसी को? हम्म, ठीक है, ठीक बताया। एटलीस्ट बोलो भाई, गलती तो बोलोगे। या आपस में एक दूसरे से शर्म आती है? तुम्हारे बैच की हो, तुम ही एक दूसरे के बैच में हो, या कोई और भी है तुम्हारे बैच से हटके यहाँ पे? ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता, वैसे भी कुछ नहीं पता हमें तो, है ना? ओके, दिस इज द ब्लैंक शीट। अब हमें इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करना है। नाउ वी हैव अ सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? स्कूल स्टूडेंट का लेते हैं, बहुत इजी हो जाता है। स्टूडेंट, दीज आर दी, सब्जेक्ट बोल देते हैं, सब्जेक्ट बोल दो यार। मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री, एआई, एमएल, इंग्लिश, अकाउंट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज इको। So this is the data. First of all, the preparation of data is a big task. Serial number is, we are assuming it to around, छोटा डेटा सेट ले बड़ा ले? छोटा लेते हैं, 20 बच्चों का लेता है बस, है ना? इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना। ओके, नाउ द स्टूडेंट नेम,
student 1, student 2, just फ्लैश फिल दिस, अपने आप हो जाएगा ये सारा काम। अब नंबर मैं रैंड बिटवीन से ले लेता हूँ, रैंड बिटवीन से बिटवीन 0 to 100 एंड क्लोज इट डाउन। Select the cells, press Ctrl R to get the values, then wait, select select the down array and press Ctrl down, सारी वैल्यूज अपने आप रैंडम जनरेट हो जाएंगी। सेलेक्ट द डेटा सेट, कंट्रोल सी, पेस्ट वैल्यूज। ग्रेट, समझ आया इतना सबको डेटा कैसे बन गया? फाइन फाइन फाइन। तो अभी ना, ये एक सेकंड, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, एक स्कूल का, और ये बच्चों के मार्क्स हैं। अभी हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स निकालने हैं। अभी तो ये सारा तुम्हें बहुत छोटा डेटा लग रहा है, ये तो बहुत छोटा डेटा है, तो तुम इजीली बता सकते हो स्टूडेंट 10 के क्या क्या मार्क्स हैं, है ना, इजीली यहाँ से निकाल के। बट एक लार्ज डेटा सेट में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट कि अभी तो हम पर्टिकुलरली बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हैं कौन सी नहीं है। नाउ एक सेपरेट बनाते हैं, अ, कि एक स्टूडेंट है, उसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स एक साथ बताने हैं, है ना। what we can do is use transpose। ओके, नाउ वी वांट टू चेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अभी हमें, अब देखो यार, अब कैसे डालोगे यहाँ पे, हमने एक फंक्शन सीखा था डेटा वैलिडेशन का, कोई एक मेरे को गाइड कर दो कैसे डालते हैं वैलिडेशन, मुझे नहीं आता। गाइस सुनाई तुम्हें देता नहीं है मुझे लग रहा है, एक कोई तो बोलो। ओके, कौन सा सेल चूज करूँ, ये लेट से मैंने ये चूज कर लिया, नेक्स्ट कहाँ जाना है? मुझे इस सेल में डेटा वैलिडेशन पुट करना है, कैसे करूँगा, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, डेटा वैलिडेशन, ओके। नाउ क्या डालूँ यहाँ पे, क्या डालना है? कस्टम, पक्का? भाई मुझे स्टूडेंट के नाम डालने हैं इधर, मैं नंबर से कैसे पहचानूंगा, सीरियल नंबर से, मुझे ये तो बताओ। मतलब मैं स्टूडेंट का नाम अपने हाथों से टाइप करूँ, तुम ये कह रहे हो? कष्ट नहीं देना है शरीर को, एक्सेल किस लिए है? यार तुम्हारे पास डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, तुम्हें दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इवन कर्सर भी उसी पे छोड़ा हुआ है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है, राइट? सी, नाउ आई कैन चूज एनी स्टूडेंट बिटवीन दिस। यार थोड़ा तो
एफर्ट दिखाओ। तुम अगर बैठे हो, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ। नाउ वी वांट टू चेक कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कि लेट्स से स्टूडेंट नंबर 7 के इसमें कितने मार्क्स हैं। कैसे पता चलेगा? दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स मैच। सो इंडेक्स मैच एक साथ यूज होता है, फिर से कह रहा हूँ मैं। अब ये देख लेते हैं यूज़ कैसे होता है। सो इंडेक्स क्या होता है? हम जैसे कॉपी में चेक करते हैं ना इंडेक्स कि फर्स्ट हमें चेक करना है कि हम इंडेक्स में लिखते थे ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कैश फ्लोज दिस एंड दिस। तो हमें पता होता था कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। माना अब नहीं बनाते हैं बच्चे, बट हाँ हम बनाते थे। तो वी यूज़ द इंडेक्स फंक्शन। index function. So what is the array? From which data we have to select this whole data set. Just choose the whole data. Fine. इतना सबको समझ आ रहा है? ओके। नाउ द रो नंबर। हमारे पास रो नंबर तो कुछ है नहीं, अभी हमें क्या करना है, इंडेक्स में हमें मैच करना है। हमारे पास ये गिवन डेटा सेट से हमें कोई वैल्यू उठा के पुट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। लेट्स से स्टूडेंट 7 के मैथ्स में कितने मार्क्स थे। हम इंडेक्स में से वैल्यू ढूंढेंगे, अब उसको मैच करेंगे। हेलो, अब क्लियर है? ओके। तो सी इंडेक्स मैच कब यूज होता है कि इंडेक्स एक हमारे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट में से हमें कोई वैल्यू उठा के मैच करनी है। इन दिस हमें स्टूडेंट 7 की वैल्यू और उसके मैथ्स में कितने नंबर थे, फ्रॉम दिस डेटा सेट हमें उठा के यहाँ पुट करनी है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स और मैच। ये फंक्शन और बेसिकली एक साथ यूज होता है। तो हमें इसमें दो कंडीशन इम्प्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज इंडेक्स। हम भाई इस गिवन डेटा सेट में से हमें मैच करके बताओ कि स्टूडेंट 7 के मैथ में कितने मार्क्स थे। अभी हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं? हम मैच की क्या कर रहे हैं गाइस, स्टूडेंट 7 के मैथ के मार्क्स निकालना चाहते हैं हम। तो हम स्टूडेंट 7 को हम बोलो। वैल्यू क्या ढूंढ रहे हैं हम स्टूडेंट 7 ढूंढ रहे हैं, है ना? है ना? स्टूडेंट 7 तो ढूंढ रहे हैं हम। हेलो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये स्टूडेंट 7 कौन से एरे में है गाइस, ये भी बता दो जरा मुझे। M3 मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, इसको वापस हटाते हैं सबको। इंडेक्स मैच फंक्शन तब यूज होता है व्हेन वी वांट टू फाइंड एनी स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम अ ह्यूज डेटा सेट। कि इंडेक्स यानी कि जहाँ पे सारा डेटा सेट है इज इक्वल टू इंडेक्स। हमारा सारा डेटा सेट किधर है? इस पूरे डेटा सेट में हमारा सारा, है ना? यही तो हमारा डेटा है। अब इसमें से हमें मैच करना है। क्या मैच करना है? कि स्टूडेंट 7 के मैथ्स में कितने मार्क्स थे। नाउ यूज द मैच फंक्शन टू फाइंड द वी आर व्हाट वी नीड टू फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 7। एंड कहाँ पे है स्टूडेंट 7, मुझे ये भी बताना ज़रा। स्टूडेंट 7 है इस वाली रो में, है ना? ओके। व्हाट वी नीड एग्जैक्ट मैच। फॉर द एग्जैक्ट मैच प्रेस 0। नाउ अभी हम स्टूडेंट 7 तो कवर हो गया, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा मैथ के मार्क्स कितने हैं? तो वी यूज अगेन मैच। लुकअप वैल्यू इज नाउ इज मैथ, वी वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ मैथ। लुकअप एरे किस एरे में है? दिस है, इस सेगमेंट में हमारे मैथ के मार्क्स हैं। ओके। एंड द मैच टाइप इज 0, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। प्रेस इट। मैथ्स की वैल्यूज किस में है? दोबारा करते हैं। इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करते हैं जब हमें एक गिवन डेटा सेट में से कोई एक वैल्यू उठानी है गिवन सम कंडीशन।
ठीक है। वी यूज़ फर्स्ट द इंडेक्स, कि हमारा इंडेक्स क्या है। हमारा इंडेक्स ये है, सारा डेटा सेट यही है हमारे पास, तो इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है ना। नाउ वी वांट टू मैच, क्या मैच करना है हमें, क्या मैच करना है, जैसे जैसे तुम बोलो मैं वैसे वैसे चलता जाऊँगा। हमें स्टूडेंट 7 करना है, डन। किस एरे में है, कॉलम बी, बी में है ना मार्क्स, तो मतलब स्टूडेंट 7 तो स्टूडेंट्स की लिस्ट किस में है, स्टूडेंट वाले कॉलम में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए ना, हमें लेस देन ग्रेटर देन तो चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख दो। नाउ अगेन, अभी स्टूडेंट 7 तो हो गया कवर, बट मैथ तो कवर हुआ ही नहीं। अब एक्सेल को इतना तो नहीं समझ आएगा ना, मशीन है ये तो। अगेन यूज मैच फंक्शन, जहाँ कमी रह जाए वहाँ फिर यूज़ कर दो। अब हमें मैथ के मार्क्स चाहिए। मैथ के मार्क्स किधर हैं ये भी बता दो, दिख रहा होगा। हम्म। ओके, कॉलम सी में मैथ के मार्क्स हैं, बट एरे कौन सा है, कहाँ लिखा है मैथ, मुझे बताओ, यहाँ कहीं मैथ लिखा हुआ है। सी, ये पूरा, यार पूरे एरे में नहीं होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, है ना, इसमें होगा। कॉलम हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0। स्टूडेंट 7 के मैथ में कितने मार्क्स हैं बच्चों, 0 है, बोल्ड कर दिया। अब हमें इस फॉर्मूला को ड्रॉप डाउन करना है, मतलब स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने से पहले हमें क्या करना होता है, सेल फिक्स करने होते हैं। अब मुझे बताओ हमें क्या क्या फिक्स करना है, हमारा इंडेक्स फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको मैच M3, यानी कि स्टूडेंट का नाम, मतलब स्टूडेंट वाला सेल फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। डेटा सेट हमारा फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा भाई। अगेन, नाउ सब्जेक्ट क्या हमारे फिक्स रहेंगे, मुझे बस इतना आंसर कर दो सिंपल सा, है ना, नहीं रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे, बोलो भाई क्यों नहीं रहेंगे, जिसने आंसर करा है। स्क्रीन तो मेरी ओपन है नहीं, मुझे तो पता नहीं है। नहीं, वेरी गुड, चेंज हो रहे हैं, बट जो हमारा रेंज है वो फिक्स रहेगा। प्रेस एंटर, इसको डबल क्लिक कर दो, ये हमारे मार्क्स आ गए, और हमारे मार्क्स ये रहे, हमारे मार्क्स सेम आ रहे हैं, हमारे मार्क्स सेम आ रहे हैं। अब मैं जैसे जैसे स्टूडेंट का नाम बदल दूंगा ना, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। स्टूडेंट 10 वैल्यू चेंज, स्टूडेंट 15 वैल्यू चेंज। दिस इज द मैच एंड इंडेक्स फंक्शन, समझ आया। ओके, ओके, नाउ कम्स द सॉल्वर, सॉल्वर फंक्शन। तो सॉल्वर फंक्शन का अब यूज़ होता है ना, कि कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, लेट्स से कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, किसी बिजनेस सिचुएशन में कॉन्स्टेंट्स होना, यानी कि इन लेट्स से नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ में देखते हैं हम लोग, कि लेट्स से हमारे पास एक गिफ्ट वाउचर है रिलायंस का, रिलायंस ट्रेंड्स में हमें शॉपिंग करके आनी है, वी 5,000 का कूपन है हमारे पास, हमें उस 5,000 कूपन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम अपने आइटम्स मैक्सिमाइज कर पाएँ। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि मैं 5,000 किस तरीके से खरीदूं कि वो पूरे यूटिलाइज हो जाएं, कि लेट से एक 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 आइटम है, एक जीन्स है, जो कि 1872 की है, 1872 की। शूज़ हैं जो कि 22 की 2222 के हैं, and belt cost around 874.75। तो these values are really मतलब बहुत वेरिएबल है, मतलब बहुत डिफरेंट वैल्यूज हैं, बट हमें हमारे पास वाउचर कितने का है, 5,000 का, सो डैट कि हमें अपनी जेब से कुछ ना खर्चना पड़े, हम कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में खरीदें कि हमें अपनी जेब से कोई पैसा ना खर्चना पड़े। ओके, तो हम एक बिजनेस सिचुएशन, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं कि वेट, पर्टिकुलर्स आर वन, एक छोटा ही सेट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे।
there are 20 items we want to purchase. Item is item 1, item 2. अगेन हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। व्हाट कैन बी द कॉस्ट? अरे भाई रैंडम वेरिएबल कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, बता दो। रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन फंक्शन, हमें कोई भी आइटम कितनी भी क्वांटिटी में लेना है। इधर इट कैन बी 1 और इट कैन बी 10, है ना। छोटी वैल्यू लेते हैं यार, हम फिर कॉस्ट बड़ी ले लेंगे। इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, एंड देन स्टेबल करने के लिए अगेन पेस्ट स्पेशल, डेटा सेट रैंडम बन गया हमारा। लेट्स से रैंड बिटवीन अगेन यूज़ करते हैं, assuming the cost of any product between 500 to 700, and just again double click it, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कंट्रोल सी एंड देन पेस्ट स्पेशल, एंड व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट? द आइटम मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, यही होता है। ये आ गया हमारे पास। अब इसका सम क्या आ रहा है ज़रा मुझे एक बार ये देख लेते हैं ज़रा। इट कम्स आउट बी 74,964। ओके, बट हमारे पास क्या है ना, हमारे पास पैसे तो, हमारे पास कूपन बहुत महंगा कूपन है हमारे पास। हम रिलायंस के इन्वेस्टर हैं और हमारे पास 6-7 कूपन है, अराउंड समथिंग अराउंड 70,000 ईच। इसका सम कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। हमें कूपन यूटिलाइज करने हैं, देखो यार। अब तुम कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम, देयर कैन बी 1000 सिचुएशंस कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लो, इस सिचुएशन को हैंडल करने के मोर देन 1000 सॉल्यूशन बनते हैं। तो लेट्स से यू हैव अ गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर ऑफ सपोज 7, नो नो, टेक इट लिटिल इजी। 20,000 के वाउचर है हमारे पास, 5 वाउचर है, वी हैव 1 लाख रुपीज़। ओके, अभी हमें उसको यूटिलाइज करना है भाई। कैसे यूटिलाइज करोगे मुझे वो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब उसको यूटिलाइज करने के तरीके हैं, वी कैन सी यूजिंग सॉल्वर। अब सॉल्वर को लगाते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन द डेटा पार्ट, डेटा टैब, या एनालाइज में सॉल्वर आ रहा होगा, क्लिक ऑन दैट। सेट ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट सेल कौन सा है, हमें क्या मैक्सिमाइज करना है गाइस? हमें टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज करनी है सच दैट कि हमारा गिफ्ट वाउचर उसके इक्वल आ जाए। सेट द ऑब्जेक्टिव दिस, the total cost, and we have to maximize this. Either we can maximize, either we can minimize by changing variable। हमारा कौन सा वेरिएबल चेंज हो सकता है? हमारी आइटम चेंज हो सकते हैं कि हम कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, है ना। एक मिनट, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दिस नीड्स टू बी मैक्सिमाइज बाय चेंजिंग वेरी, ओके वेट, जूम करते हैं, दिख पा रहा है? नाउ वी यूज टू यू वी वांट टू फाइंड आउट कि कौन सा आइटम हम कितनी क्वांटिटी में खरीदे सच दैट गिफ्ट वाउचर विल बी फुल यूटिलाइज्ड। यूज द सॉल्वर टैब, in the go to data tab and use this solver. What is our objective guys? We want to maximize this, so this is our objective, this one 74,934 को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और कौन से वेरिएबल चेंज करेंगे हम लोग? हम वी वांट टू चेंज द आइटम, कौन से आइटम कितने हैं। ओके, प्रेस एंटर। अब देयर वैल्यू ऑफ लाइक कि कौन, मतलब लेट से यू वांट टू this objective cell should be between this and this only,
कि कोई वैल्यू इन बिटवीन ऑफ सर्टेन वेरिएबल, कि लेट से अगर मैं इसको वैल्यू ऑफ करता हूँ ना, वेट, मुझे ये वैल्यू कहाँ पे लेके जानी है, ये पूछ रहा है मेरे से, कहाँ तक लेके जानी है, मेरे को तो मैक्सिमाइज करनी है ना, सो डैट कि मेरा गिफ्ट वाउचर यूटिलाइज हो जाए। कि गॉट गॉट इट, समझ आ रहा है डिफरेंस? नाउ दे आर आस्किंग फॉर कांस्टेंट, व्हाट कैन बी द कांस्टेंट, तो ऐड करते कांस्टेंट, समझते जाना, जहाँ समझना है मुझे बताना। व्हाट वी वांट टू थिंग इज कि गिफ्ट वाउचर शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट इज दिस, कि ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। गॉट इट? वी ऐड दिस। नेक्स्ट थिंग इज, अगर देखो यार, अब जब ये चेंज होगा ना, तो देर में भी सिचुएशन की आइटम जो है पॉइंट में आ जाए। हमें पॉइंट में तो नहीं चाहिए। वी वांट कि ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये सारी शुड बी इन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ऐड। थर्ड सिचुएशन शुड बी, देर में बी, कि लेट से एक्सेल बहुत एडवांस है भाई, मान लो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, कि तुम अपनी जेब से थोड़ा पे करोगे, शॉप पे जा रहे हो कि भैया ये लो शर्ट, और मैं मतलब पैसे पैसे तुम मुझे दे दो, ऐसा होता है कि कभी नहीं हो सकता ना। तो ये ये हमारा कॉन्स्टेंट है कि भाई हमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीरो। इतना समझ आया? यहाँ तक किसी और डाउट? ठीक है, समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया वैसे तो, बट अच्छी बात है। नाउ वी वांट कि, हम्म, कांस्टेंट दोबारा करते हैं, है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसने अभी पूछा वही बताएगा बस, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, किस वैल्यू को? 74,964 को, ओके। हमें मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज। कौन से वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं? क्या तुम एक शोरूम में जाके क्या कॉस्ट चेंज कर सकते हो प्रोडक्ट की, कि भैया मैं चेंज कर देता हूँ, रुको वैल्यू, होता है क्या? या तुम अपनी क्वांटिटी जो तुम परचेज कर रहे हो वही चेंज कर सकते हो ना बस। तो सेलेक्ट द एरे, प्रेस एंटर। ओके। नाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है ना, कि अब देखो, एक्सेल जब कैलकुलेट करेगा इन सब सिचुएशंस को, क्या करेगा ना एक्सेल, या तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। क्या कभी भी कोई क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? कोई क्वांटिटी पॉइंट में हो सकती है क्या? ओके। और हमारा तीसरा कांस्टेंट क्या था, कि हमें गिफ्ट वाउचर फुल यूटिलाइज करना है, तो अब देखते जाना। वी वांट कि दिस सेल, यानी कि जो हमारा टोटल है, शुड बी इक्वल टू दिस गिफ्ट वाउचर का, हमारे पास जितने हमें यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट इज कि हमारा जितनी भी क्वांटिटीज हैं शुड बी मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, कि ज़ीरो से नेगेटिव में ना आए। थर्ड वन इज कि अगर, ओके, पॉजिटिव आ रही है, बट मे बी सिचुएशन की पॉइंट में आ जाए, 1.2 आ रही है, 1.35 आ रही है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो कि दिस शुड बी ऑलवेज इंटीजर। नाउ प्रेस ओके। देर आर थ्री कॉन्स्टेंट्स विच आई हैड चूज। तो देर में भी सिचुएशन की ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो, या गिवन डैट की डेटा सेट कितना बड़ा है और कितना वेरिएबल वेरिएबल है। इतना समझ आया? थर्ड वाला, थर्ड वाला कांस्टेंट इज गिफ्ट वाउचर इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट। अब देखना इधर ना, इधर जहाँ मैं रोटेट कर रहा हूँ अपना कर्सर, यहाँ पे ना कैलकुलेशन होगी एक, तुम फिगर से एक बार नोट डाउन करना ज़रा। सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ प्रॉब्लम देखना ज़रा। देर आर अराउंड 250 solutions for this problem. If I press OK, सी, पूरा यूटिलाइज हो ही नहीं पाया।
इवन एक्सेल भी इस सिचुएशन को, इस बिजनेस सिचुएशन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाया, मैक्सिमाइज अप टू दिस पॉइंट। मतलब तुम 1 लाख का पूरा यूटिलाइज तब भी नहीं कर पाओगे, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 368 रुपीज़। ओके, सो एंड सी, आइटम वन तुम्हें खरीदना ही नहीं है। तो ये काफ़ी वायबल सॉल्यूशन है जब तुम कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे अपने फोर्थ सेम में। तो दैट्स हाउ वी कैन मैनेज द इन्वेंट्री एंड कौन सा आइटम खरीदना चाहिए टू मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो these are the things which are used in your, I'm telling you the things which you'll learn throughout your ग्रेजुएशन, जितना भी तुम सीख पाओगे इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा तुम्हारा जो करेगा। इससे हटके तुम ग्रेजुएशन में, इंटर्नशिप्स में तुम, आई गेस इससे हटके तो कुछ नहीं सिखाने वाले। रिग्रेशन सीख लोगे, बट रिग्रेशन के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। इतना सबको समझ आया सॉल्वर? लास्ट टॉपिक, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है या छोड़ना है? वैसे ये ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने, रिमेंबर हमने वो करा था, डेटा टेबल हमने छोड़ दिया ना, छोड़ो, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी छोड़ देते हैं, बिकॉज ये डेटा टेबल से अराउंड रिवॉल्व करता है एंड सुनने में बहुत अच्छा वर्ड है लेकिन बहुत बहुत घटिया है, कुछ भी नहीं है। अभी तुम मुझे सिखा दोगे, तुम्हें अगर मैंने बता दिया ना, तुम मुझे 5 सॉल्यूशन दे दोगे इसके। तो इतना सबको समझ आ गया?